رمضان 9واں مہینہ ہے، سپٹمبر 9واں مہینہ ہے، اسی طرح مارگشیرا ایک مہینہ ہے۔ ہندوؤں کا جو پنچانگ رہتا، پنچانگ مانے مہینوں کو پنچانگ بولتے، اس میں مہینوں کا نام رہتا، اس میں 9واں مہینہ مارگشیرا۔ مارگشیرا میں ان کی کتابیں نازل ہو گئی، وہ لوگ بول رہے مجھ کو کون سی بات آ گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ کون سی حدیث ہے؟ اللہ کی کتابیں 9ویں مہینے میں نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی نکلی۔ ہر قوم کے پاس نبی بھیجا، ایک بھی قوم ایسی نہیں بچی جہاں پہ اللہ اپنے رسول کو نہیں بھیجا۔ ہندوستان اتنی بڑی قوم ہے، اتنی بڑی کنٹری ہے، کیا یہاں پہ اللہ اس سے اپنے نبی کو بھیج کے رہتا نہیں رہتا؟ قرآن کے مطابق بھیج کے رہنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی قوم کے پاس اپنے نبی کو جو بھیجتا کون سے زبان میں سمجھا تھا؟ اس قوم کے زبان میں ہی سمجھا تھا تاکہ وہ لوگ سمجھ سکے۔ سانسکرت زبان ہے، سانسکرت زبان کس کی ہے؟ اوپر والی کی ہے۔ عربی کس کی ہے؟ اوپر والی کی ہے۔ انگلش، تمل، تیلگو، دنیا کے سارے زبانیں کس کی ہے؟ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بڑے اسحاق کے اولادوں میں سے ہم ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہے؟ جیسا کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام بنی اسرائیل، مانے بنی اسرائیل، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام آئے، وہیں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے آئے، ہے نا؟ تو مسلمانوں سے سوال کریں گے تو کیا بول رہے ہیں؟ ہم جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے بول کے ہم جواب دے رہے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کون ہے معلوم؟ عرب کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہے۔ میرا سوال آپ سے، ہندوستان کے مسلمانوں سے، کیا آپ لوگ عرب لوگ ہیں کیا؟ اب دبئی سے ہے، اب عمان سے ہے، ہم کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے کو ایک رشتہ ہے، نوح علیہ السلام سے ہم کو 2 رشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا رشتہ دینی رشتہ، انہوں بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، انہوں بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، انہوں بھی مسلم ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، مانے ان کا اور ہمارا دینی رشتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارا، نوح علیہ السلام سے ہمارے 2 رشتے ہیں، ایک دینی رشتہ ہے، دوسرا قرآن کو میں نازل کیا اور میں کہہ دیا کہ سارے انسانوں کے ہدایت کے لیے، یہ آپ کو معلوم ہونے کے باوجود جو کوئی بھی اس کو چھپائیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور ببرکت والا رمضان مہینہ الحمدللہ ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے عبادتوں کو قبول کرے، روزوں کو قبول کرے، ماشاءاللہ دنیا میں کامیابی دے، آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو بھی گناہیں ہم سے ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہیں ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں بہترین سے بہترین مقام جنت الفردوس تمام لوگوں کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں، آج جو میں آپ کو چند باتیں جو بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ یہ جو باتیں ہیں قرآن مجید کے روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو بتا رہا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان مہینہ، رمضان مہینے کے اندر ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، کس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیا کہ روزہ رکھنے کے لیے۔ پھر اللہ جو حکم دیا رمضان کے مہینے میں ہی کیوں حکم دیا؟ رمضان مانے ایک مہینے کا نام ہے، ایک سال کے 12 جو مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام رمضان۔ اور رمضان کون سا مہینہ ہے؟ 9th month، 9واں مہینہ ہے، 12 مہینوں سے 9واں مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم انگریزی جو مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس میں 9واں مہینہ کون سا ہے؟ سپٹمبر۔ اسی طرح جو دینی جو اسلامک جو منتھ ہے اس کے اندر جو ہے نا 9th month کون سا ہے؟ رمضان۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزہ رکھنے کے لیے حکم اس لیے دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن مجید کو نازل کیا اس مہینے کے اندر، قرآن کو نازل کیا اس مہینہ رمضان مہینہ۔ قرآن کیوں نازل کرا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ ہدایت کے لیے نازل کیا قرآن کو۔ ہدایت مانے کیا ہے؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سمجھنے کے لیے ایک کتاب ہم کو سمجھانے کی کتاب ہے۔
एक इंसान सही रास्ते पे चलने के लिए सही रास्ता क्या है समझना बहुत जरूरी है। सही रास्ता क्या है समझने के लिए हमको जो है ना ये कुरान हमको गाइड कर रहा है। कुरान क्या है? गाइड है, ये हिदायत की किताब है। ये हिदायत की किताब जो नाजिल हुआ रमजान के महीने में, इसीलिए जो है ना रमजान के महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुक्र अदा करते हुए, किसका शुक्र अदा कर रहा हूं? ये अल्लाह तू हमारे लिए हिदायत की किताब दिया, इसके शुक्र अदा करते हुए जो है ना रमजान में रोजा रखने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिया है। यहाँ पे ये बात हमको समझ में आई कि कुरान नाजिल हुए सो महीना कौन सा है? रमजान का महीना है। अच्छा, दूसरी बात, अब देखिए कुरान हिदायत की किताब है, हिदायत माने गाइड है। अब देखिए कुरान कब हिदायत होती है? उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तो अगर हमको समझ में बात आ गई तो हमको रास्ता क्या समझ में आता। गाइडेंस है। गाइड कब समझ में आता? पढ़ेंगे तो समझेंगे तो समझ में आता। तो माने कुरान को हम समझना जरूरी है। अगर आपको अरबी आती है तो अरबी पढ़ के समझिए, समझ में आना जरूरी है, खाली तिलावत करना नहीं है, तिलावत के साथ साथ समझना। अगर आपको अरबी नहीं आती है, तेलुगु आता है, सिर्फ तेलुगु में तर्जुमा पढ़िए समझिए, हिंदी आता है तो हिंदू में पढ़िए समझिए, उर्दू समझ में आता है उर्दू में पढ़िए समझिए, समझना जरूरी है। बगैर समझे कुरान को 1,00,000 मर्तबा भी अगर आप पढ़ लिए, हिदायत मिलने वाली नहीं है, हिदायत मिलने वाली नहीं है। देखिए आपका कोई दोस्त आपको कुछ लेटर लिख के भेजा, कुछ मैसेज करा, वो मैसेज इंग्लिश में है, इंग्लिश अगर आपको नहीं आता तो आप क्या कर रहे हैं? खाली पढ़ते जा रहे, समझ रहे नहीं, कुछ फायदा नहीं है। उसको समझने के लिए समझने जो समझता उसके पास जाकर उसका माना क्या है समझने पूछते आप लोग, उसके बाद बात समझ में आती। तो अल्लाह हमको जो पैगाम दिया, अल्लाह जो हमको मैसेज दिया वो अरबी में है, अरबी में है। कुरान अरबी में नाजिल हुआ। क्यों? कुरान नाजिल कहां पे हुआ? अरब में हुआ। अरब के लोग बात करने का जबान क्या है? अरबी। इसलिए उनको बेहतर समझ में आने के लिए अल्लाह कुरान को अरबी में नाजिल किया, ताकि वो लोग बेहतर समझने के लिए। अब हम तो अरब के लोग नहीं हैं, हम तो अरबी नहीं आती, अगर सीखे तो उसको माने समझना थोड़ी मुश्किल की बात है। सीखना जरूरी है, अरबी सीखना जरूरी है, माने से समझ, अरबी पढ़े तो समझ में आना हमको, उतना सीखना जरूरी है। अगर तब तक क्या करना, हमको जो जबान समझ में आता, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उस जबान के तर्जुमा हमको पढ़ के हम कुरान को पढ़ना सीखना जरूरी है। अब आइए यहाँ पे 2-3 चीजें समझ में आए। कुरान जो है रमजान में नाजिल हुआ, और कुरान हिदायत की किताब है। कुरान समझ के पढ़ना, हिदायत लेना, ये 3 चीजें समझ। और दूसरी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मसनद अहमद 16,536 के अंदर, इससे पहले कुरान से पहले जो किताबें नाजिल हुई है वो किताबें भी कब नाजिल हुई? रमजान के महीने में नाजिल हुई। जैसा कि इंजील रमजान में नाजिल हुआ, तौरात रमजान में नाजिल हुआ, जबूर रमजान में नाजिल हुआ। इसी तरह जितने भी अल्लाह के कलाम है किताबें हैं, इससे हदीस से समझ में आ रहा कि रमजान के महीने में ही नाजिल हुए। तो दूसरी एक नई बात मालूम हुई, कुरान रमजान में नहीं, इससे पहले की किताबें भी कब नाजिल हुए? रमजान के महीने में ही नाजिल है। अब देखिए कुरान पढ़ेंगे तो उनकी यह बात समझ में आ रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है लिकुल्ली कौमिन हाद, माने हर कौम के लिए, हर जगह के लिए अल्लाह एक डराने वाले को, समझाने वाले को एक रसूल को भेजा। माने अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ अरब में ही नबियों को नहीं भेजा, हर जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबियों को भेजा है। कुरान पढ़े तो समझ में आ रहा। तो माने देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 नबी है कि अल्लाह के? 1,24,000 नबियां है। कितने? 1,24,000 नबियां है। उसमें कितने नबियों के नाम जिक्र है कुरान के अंदर? 25 नबियों का जिक्र है। 25 कहां, 1,24,000 कहां है ना? तो अब देखेंगे फिर 1,25,24,000 नबियां कहां पे आए? हर जगह पे। मोहम्मद से पहले हर इलाके में नबी को भेजे। बनी इस्राइल के अंदर हजारों के नबी आए, और एक भी इलाका नहीं बचा, एक भी कौम ऐसी नहीं बची जहां पे अल्लाह नबियों को नहीं भेजा। तो माने हर जगह नबी आए, ये एक इंफॉर्मेशन कुरान से मिल रहा है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है लिकुल्ली अजलिन किताब, माने हर जगह पे हर कौम के लिए एक किताब भी दिया। माने नबी को भेज के छोड़ा नहीं, नबी के साथ साथ सहीफों को दिया और किताबों को भी भेजा। एक बात समझ में आ रही? अब भाई यार एक बात मुझको बताइए, यहाँ पे इतनी बड़ी दुनिया में हिंदुस्तान माने अब जो इंडिया में हम जिंदगी उतरे, इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी कंट्री है, क्या यहाँ पे अल्लाह इससे बड़े नबी को भेज के रहता नहीं रहता? कुरान के मुताबिक भेज के रहना जरूरी है। हर कौम के पास नबी भेजा, एक भी कौम ऐसी नहीं बची जहां पे अल्लाह अपने रसूल को नहीं भेजा। अगर देखिए, अगर ये हिंदुस्तान में इतने करोड़ों के लोग हैं, यहाँ के इनके पास अगर नबी को अगर नहीं भेजा, माने इनके ऊपर जुल्म हुआ।
माने इनको अल्लाह पैगाम नहीं पहुंचाए जैसा होता, ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे भी पैगाम मिला, माने यहाँ पे भी किताबें आए, पूरी दुनिया के हर इलाके में नबी आए, हर इलाके में अल्लाह के तरफ से किताबें नाजिल हुए, माने रास्ता बताया गया। अब आइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम मिला, कुरान कौन से ज़बान में मिला? अरबी में मिला। अब हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो हमारा कलमा है। अब आइए, उससे पहले जो नबियों में से एक नबी है मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा क्या है? अगर हम सवाल करेंगे अक्सर एक जवाब मिलता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। तो मेरा सवाल यह है, क्या मूसा अलैहिस्सलाम का ज़बान अरबी थी क्या अरबी में बात कर रहे थे क्या ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी लैंग्वेज है ना, क्या मूसा अलैहिस्सलाम को अरबी आती थी क्या? नहीं आती थी। मूसा अलैहिस्सलाम का मदर लैंग्वेज क्या था? हिब्रू। माने मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलाम करा, कलीमुल्लाह, कौन से ज़बान में कलाम करा? अगर अरबी में बात करता तो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आता, कौन से ज़बान में बात करना? जो लैंग्वेज मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान है वो लैंग्वेज कौन सी ज़बान है? हिब्रू। माने अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिब्रू में कलाम करा मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम तक जो पैगाम आया, जो मैसेज उनके कौम को पहुंचाए, कौन से ज़बान में पहुंचा? हिब्रू में पहुंचाए। बात देखिए, इस दुनिया में जितने भी ज़बानें हैं, जितने भी लैंग्वेजेस है, ये सारे किसके हैं? अल्लाह के निशानी। तो उस टाइम में कलमा क्या था? अगर हम गौर करेंगे बनी इस्राइल की जो किताबें हैं वो पढ़ेंगे, वहां पे ये मिलता है शमा इस्राएल अदना हैना व अदना कद, माने ला इलाहा इल्लल्लाह जो अरबी में है वो हिब्रू में मालूम हो रहा। तो उस टाइम पे कलमा जो है, एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, ये कौन से ज़बान में बताया गया? हिब्रू में बताया गया। अब आइए, ईसा अलैहिस्सलाम के पास कौन से ज़बान में पैगाम आया? अरबी में आया क्या? नहीं। क्यों नहीं आया? ईसा अलैहिस्सलाम को अरबी नहीं आती थी। ईसा अलैहिस्सलाम का मदर लैंग्वेज क्या था? कौन सा था भाई? कौन सा लैंग्वेज था? अरामिक ज़बान था। अरामिक ज़बान में अल्लाह पैगाम भेजा। तो देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी कौम के पास अपने नबी को जब भेजता, कौन से ज़बान में समझा था? उस कौम के ज़बान में ही समझा था, ताकि वो लोग समझ सके। कुरान अरबी में क्यों नाज़िल हुआ? इसलिए कि वहां के लोग अरबी बात करते थे, इसलिए उनको समझ में आने के लिए अरबी में अगर नाजिल करा अल्लाह कुरान को, वो लोगों को समझ में आता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ मैं आज यहाँ पे उर्दू में क्यों बयान कर रहा हूं? इसलिए कि आप लोग उर्दू समझ सकते, इसलिए मैं आप उर्दू में बयान करूं। मैं अगर यहाँ पे तमिल में बयान करा तो आपको समझ में नहीं आती, मैं बयान करके कुछ फायदा नहीं रहता। इसलिए कौम इंसान जिस जबान समझते उस जबान में समझाना, यह किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। इसीलिए सारे कौमों के पास अपने नबियों को जब भेजा, उस कौम के जबान में ही पैगाम को भेजा करता था, किताबों को नाजिल किया करता था। माशाल्लाह, बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? समझ में आ रही भाई? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही। अब देखिए, गौर करिए, एक गौर करने की बात है, हमारे बाप कौन है? सारे इंसानों के बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। सारे इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जमीन पर भेजा, जमीन में कौन से हिस्से में भेजा भाई? कौन से इलाके में है? दुनिया इतनी बड़ी है, इतना बड़ा इलाके में कौन से इलाके में आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन पर भेजा? हम देखेंगे हिंदुस्तान में भेजा। हिंदुस्तान माने क्या है? अब गौर करिए, आज का इंडिया तो बहुत छोटा है, आज का हिंदुस्तान छोटा है। एक टाइम पे पाकिस्तान भी इंडिया में था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, अफगानिस्तान भी इंडिया में था, श्रीलंका भी इंडिया में था, मलेशिया भी इंडिया में था, सिंगापुर भी, सारे कंट्रीज मिलके अखंड भारत बोलते, बहुत बड़ा भारत। ये हिंदुस्तान, एक्चुअल हिंदुस्तान इतना बड़ा। हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम है, कहां पे भाई? आज के श्रीलंका में। आज जो श्रीलंका, वहां पे आदम अलैहिस्सलाम के नाम से पहाड़ भी है, आदम अलैहिस्सलाम के नाम से हिस्ट्री भी मिल रही है। वहां पे आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में है। ये सारे उलमा जानते सो बात है, ये नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अब बताइए, आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ पे आए तो आदम अलैहिस्सलाम का जबान कुछ होता था ना? आदम अलैहिस्सलाम कुछ जबान में बात करते थे, कौन सा जबान था? हम बोल रहे हैं हमारे बाप का नाम आदम, हमारे माँ का नाम क्या है? हव्वा। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, ये हम जो है हमारे माँ बाप और बाप। तो जबान जो है ना, जैसा कि शफी है मेरा नाम है, कौन सा भी एक लैंग्वेज है ना मेरा, शफी कौन सा जबान है? तेलुगु तो नहीं, इंग्लिश तो नहीं होता। इसीलिए आदम जो है ना, कौन सा जबान है बोले तो अरब लोग बोल रहे, तो अरबी नहीं होता।
آدم عربی نہیں ہوتا، پھر آدم کون سا زبان ہے؟ ہم تحقیق کریں تو پوری دنیا میں آدم نام صرف ایک زبان سے مل رہا ہے. کون سا زبان ہے وہ؟ آدم، آدم، آدی وارمو. سنے کبھی؟ سوما وارمو، آدی وارمو. آدی وارمو تو پہلا دوسرا، پہلا آدی سب سے پہلا وار، دوسرا سوما وارمو دوسرا ہے، آدی وارمو آدم. آدم مانے یہ سانسکرٹ ہے، یہ سانسکرٹ زبان ہے. سانسکرٹ زبان کس کی ہے؟ اوپر والی کی ہے. عربی کس کی ہے؟ اوپر والی کی ہے. انگلش، تمل، تیلگو، دنیا کے سارے زبانیں کس کی ہے؟ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے نشانے، سارے کلرز بھی اللہ کے نشانیاں ہیں، سارے زبانیں بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے. تو اب جو آئیے آدم علیہ السلام کا نام سانسکرٹ میں ہے، اگر ان کا زبان سانسکرٹ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سب سے پہلا پیغام آدم علیہ السلام کو جو بھیجا کون سے زبان میں بھیجتا؟ سانسکرٹ میں بھیج کے رہتا. اب دیکھیے حوا علیہ السلام، حوا کون سا زبان ہے؟ حوا کون سا زبان ہے؟ اب دیکھیے آپ لوگوں میں سے بڑے بزرگ لوگ ہیں، آپ لوگ گاؤں میں ایک 30 سال پہلے دیکھیں گے بڑے بزرگ عورت کے لیے، بڑی عمر کی عورت کے لیے کیا بلایا کرتے ہیں یہاں پہ ہندوستان میں؟ اوا. اوا، وہ ابا اٹرا، وہ ابا بولتے. ابا مانے بڑی عورت، بڑی عورت، پرانے زمانے کی عورت. حوا سب سے پہلی عورت سانسکرٹ لینگویج میں سے آئے. مانے یہ سمجھ میں آ رہا ہاں یہاں پہ سانسکرٹ جو زبان پرانے زمانے میں یہاں بولا کرتی تھی اس زبان میں بھی پیغام آنا چاہیے. یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا. اب آئیے اور ایک دوسری بات ہم غور کریں گے. یہ سارے چیزیں کب غور کریں تو سمجھ میں آ رہے. قرآن کیا ہے؟ غور کرنے کی کتاب ہے. قرآن غور کرنا چاہیے، ہے نا. تو اب دیکھیے ہمارے جو نبیوں میں سے ایک نبی ہے، کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کتنے ہیں؟ کتنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو؟ 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرا اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیوی ہے حاجرہ علیہ السلام. حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک جو بیوی ہے سارہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام کے ذریعے سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، جواب دیجئے آپ لوگ، ہم کس کی اولادوں میں سے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہے ہم مسلمان، یا اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہے؟ کن کے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق کے اولادوں میں سے ہم ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہے؟ جیسا کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام بنی اسرائیل، مانے بنی اسرائیل، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام آئے، وہیں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے آئے، ہے نا. تو مسلمانوں سے سوال کریں گے تو کیا بول رہے ہیں؟ ہم جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے بول کے ہم جواب دے رہے. صحیح ہے غلط ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کون ہے معلوم؟ عرب کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہے. میرا سوال آپ سے ہندوستان کے مسلمانوں سے، کیا آپ لوگ عرب لوگ ہیں کیا؟ نہیں ہیں. ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کون ہے؟ عرب کے لوگ ہیں. اس لیے عرب کے لیے یہ کہتے ہیں ام العرب کون ہے؟ حاجر علیہ السلام. حاجر علیہ السلام ام العرب، عرب کے ماں حاجر علیہ السلام. ہم عرب سے نہیں آئے آپ لوگ عرب سے؟ اب دبئی سے آئے، اب عمان سے آئے، ہم کہاں سے؟ ہم ہندوستان سے ہیں. ہم یہاں پیدا ہوئے، ہم یہاں کے لوگ ہیں، ہم عرب کے لوگ نہیں ہوتے. تو اب دیکھیے قرآن میں ہم غور کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے، غور سے سنیے، غور سے سنیے. قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، 2 نبیوں کا ذکر کر رہا. نوح اور ابراہیم یہ دونوں کو بھی اللہ نبیہ بنایا نہیں بنایا؟ نبیہ بنا. اور کہتا ہے یہ دونوں کے نسل میں سے، اولادوں میں سے اللہ نبیوں کو بنایا اور کتابوں کو بھیجا. نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے کہ نبی آئے، کتاب آئے. ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے کتاب آئے اور نبی بھی آئے. اب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے کون نبی آئے بھائی؟ ہم جانتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ان کی اولادوں میں سے بنی اسرائیل کے نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے تو نبی سمجھ میں آ رہے، کتابیں سمجھ میں آ رہے. اب نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے کون سے نبی آئے؟ نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے کون سے کتابیں آئے؟ اب سوال کریں گے تو بہت سارے لوگوں کے پاس جواب نہیں ملتا. اب آئیے نوح علیہ السلام کہاں کے نبی ہے؟ نوح علیہ السلام نبی انڈیا کے، ہندوستان کے نبی ہے.
हिंदुस्तान के नबी है। यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों से अगर सवाल करेंगे, आप लोग किसकी औलाद है अगर पूछेंगे, आज यहाँ के हिंदू के पंडित, हिंदू के बड़े बड़े इल्म रखने वाले बोलते हैं हम जो है ना मनु के औलाद है बोल रहे। किसके? मनु ऋषि, मनु ऋषि के औलाद है। मनु कौन है? नूह अलैहिस्सलाम को ये लोग जो है ना मनु बोल रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम इंडिया के नबी है। इंडिया में उनके औलादों में से बहुत सारे नबी हैं, उनके औलादों में से बहुत सारे किताबों को अल्लाह भेजा। तो माने हिंदुस्तान में भी बहुत सारे किताबें नबियां आए। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद कहां से है? इंडिया से। अब बताइए हम किसकी औलादों में से है? नूह अलैहिस्सलाम के औलादों में से है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमारे को एक रिश्ता है, नूह अलैहिस्सलाम से हमको दो रिश्ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमारा रिश्ता दीनी रिश्ता, उन्होंने भी अल्लाह के बंदे थे, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने भी मोमिन है, हम भी मोमिन है। उन्होंने भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है। माने उनका और हमारा दीनी रिश्ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारा, नूह अलैहिस्सलाम से हमारे दो रिश्ते हैं, एक दीनी रिश्ता है, दूसरा हम औलाद है उनके, खूनी रिश्ता है, उनसे हम पैदा हुए, जेनेटिकल रिलेशन है हमारा नूह अलैहिस्सलाम से। और ताज्जुब की बात आप सुन के ताज्जुब करेंगे, मैं खुद ताज्जुब करा जब ये बात हुआ। मेरी जो मुलाकात है एक वेद पंडित से हुई। बताए हम जो वेद है, हम वेद को कलाम अल्लाह मानते, माने ऊपर से नाज़िल हुई किताब मानते हो। और भगवत गीता की भी वो लोग क्या मान रहे हैं? भगवान की किताब मान रहे हो। कैसा ही भाई, कोई लिखे शायद ना बोलते नहीं, वो लोग बोल रहे आवाज के जरिए से आई, उसको बोल रहे वो पंडित मेरे को समझाए ये श्रुति है। श्रुति को अरबी में वही बोल रहे, वही को संस्कृत में श्रुति बोल रहे। ये बोल रहे। अच्छा उसके बाद शास्त्री जी प्रशांत जी जो बता रहे ये जो वेद और भगवत गीता जो है नाजिल कब हुए बोल रहे लोग? 9वां महीने में नाजिल हुए बोल रहे। 9वां महीना, अरे उनको कैसा मानो? बोले बोले हमारी किताब में लिखा हुआ है, बता रहे कौन सा 9वां महीना? 9वां महीने को लोग मार्गशिर महीना बोलते। मार्गशिर एक महीना का नाम है। जैसा रमजान 9वां महीना है, सितंबर 9वां महीना है, उसी तरह मार्गशिरा एक महीना है। हिंदुओं का जो पंचांग रहता, पंचांग माने महीनों को पंचांग बोलते। वो लोग मुहूर्त जो लगाते पंचांग देते, उसमें महीनों का नाम रहता, उसमें 9वां महीना मार्गशिरा। मार्गशिरा में उनकी किताबें नाज़िल हो गई। वो लोग बोल रहे मुझको कौन सी बात आ गई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। कौन सी हदीस है? अल्लाह की किताबें 9वें महीने में नाज़िल हुई। माशाल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु की बात कितनी सच्ची निकली, सच्ची निकली ना निकली? मेरा ईमान ताजा हो गया। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु जो हदीस उनके बारे में बताए, वो हदीस के बारे में आज कौन बता रहे? एक वेद पंडित बता रहे कि 9वें महीने में हमारे किताबें नाज़िल हुई। तो यहाँ पे गौर करने की बात यह है भाइयों, यहाँ पे देखिए मैं हूं ना, मेरे दादा के दादा कौन थे? यहाँ के हिंदू थे। आपके दादा के दादा कौन थे होंगे? यहाँ के हिंदू थे भाई। हम कहीं अरब से नहीं है। इंडिया के मुसलमानों में से 98% से ज्यादा मुसलमान। अब बताइए हम दादा के दादा कौन है? यहाँ के हिंदुस्तान के हैं। हम कहीं अरब से नहीं है, हम कहीं दूसरे कंट्री से नहीं है ना भाई? तो यह बात ये समझ में आ रही। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे हम मेरे दादा के दादा शायद होंगे कोई रेड्डी, मेरे दादा के दादा शायद होंगे कोई कम्मा, मेरे दादा का दादा शायद होंगे कोई कापू, मेरे दादा का दादा शायद होंगे कोई माला, कोई मादिगा, कौन सी तुम्हें कम्युनिटी से थे मेरे दादा के दादा। उन्होंने जो इस्लाम कबूल करे उसके बाद हम मुसलमान हुए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये सही बात है गलत बात है? ये सही बात है, ये सही बात है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, यहां से हमको जो है ना हिदायत मिली, हम जो है ना दीन को समझने से हम जो है मुसलमान। अब आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है अहले किताब माने जिसको मैं किताब दिया, अहले किताब सारे एक जैसे नहीं है। अहले किताब सारे लोग एक जैसे नहीं है, उनमें मोमिन भी है। उनमें कौन है? मोमिन भी है। माने ईसाई लोग अहले किताब है ना? जितने लोगों को भी किताब दिया गया वो लोग सारे कौन है? अहले किताब। अहले किताब सारे मुशरिक नहीं है। अहले किताबों में से चंद लोग कौन है? मोमिन है, माने मुसलमान है। वो लोग जो है ना एक अल्लाह को मानते हैं, माने एक ऊपर वाले को मानते हैं और आखिरत को मानते हैं, शिर्क नहीं करते और यहां नेक काम करते रहते, वो लोग भी मोमिन है। कौन बोल? अल्लाह कुरान में बता रहा, अल्लाह कुरान में बता रहा। माने ये समझ में आ रहा
शिर्क नहीं करके एक अल्लाह को जो मानता है, एक ऊपर वाले को, जो पैदा करने वाले को, एक क्रिएटर को जो मानता है, और जो ना आखिरत में जो ईमान रखता है, माने मरने के बाद अल्लाह उठाएगा, फिर सवाल जवाब होगा, जन्नत है जहन्नम है, जो मानता है और नेक काम करता है, ऐसे लोग अल्लाह कहता है अहले किताबों में से कौन है? मोमिन है। तो ये बात गौर करने की बहुत जरूरत है ना। मैं जो वेद पंडित जो प्रशांत जी से जो मुलाकात करके बात करा, उनसे जब बातचीत हुई, उन्हें ये बता रहे मैं ऊपर वाले को मानता हूं और मैं किसी की इबादत नहीं करता हूं, सिर्फ ऊपर वाले की इबादत करता हूं, इसलिए कि मरने के बाद शाश्वत स्वर्ग है, माने हमेशा की जन्नत है, शाश्वत नरक है, माने हमेशा की जहन्नम है। देखिए आखिरत को मान रहे, एक ऊपर वाले को भी मान रहे, और ये बता रहे हम नेक काम करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हर चीज ऊपर वाला देख रहा है। अब देखिए उनके किताब के हिसाब से उन्हें क्या हो गए? मानने वाले हुए। मानने वाले को क्या बोलते हैं? मोमिन। ये अल्लाह कुरान, देखिए फिर कुरान की आयत कैसी सच्ची निकल रही, कुरान की आयत कैसी सच्ची निकल रही। तो यहां पे बात यह समझ में आ रहा कि जो है ना, कुरान पढ़ने से ये सारे चीजें हमको समझ में आते हैं। और खास करके देखिए आज मुसलमानों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जिम्मेदारी दिया। कौन सी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है कुरान में सूरह आले इमरान में 110वीं आयत जब हम देखेंगे, सूरह आले इमरान में 110वीं आयत जब देखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। माने मुसलमान को अल्लाह कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। माने मुसलमान क्या करना? मुसलमान खुद अच्छे काम करना, लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाना, लोगों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, लोगों को, माने सारे इंसानों को। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सूरह बकरा 159 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ये आयतों को मैं नाजिल किया, कुरान को मैं नाजिल किया और मैं कह दिया कि सारे इंसानों के हिदायत के लिए। ये आपको मालूम होने के बावजूद जो कोई भी इसको छुपाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, उनके ऊपर अल्लाह की लानत है, और लानत देने वाले सारे लोगों की लानत है। तो देखिए अगर कुरान को हम समझकर अमल करना और दूसरों तक भी पहुंचाना, इसके पैगाम को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो अल्लाह की लानत है, अल्लाह वार्निंग दे रहा। अब देखिए अल्लाह की अगर लानत हमारे ऊपर है, क्या हम तरक्की पे जाते? क्या हम खुश रह सकते? नहीं रह सकते, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ये लानत की वजह से सारी दुनिया में परेशान है। आज आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं कि आप लोग एनआरसी सुन रहे हैं, आप लोग सीए एनआरसी पूरे इंडिया में कुछ होने वाला है, मुसलमान की सिटीजनशिप खत्म होने वाली है, सब डर रहे। मैं सवाल करूं छोटा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतना बड़ा प्रॉब्लम का हल कुरान में रहता नहीं रहता? क्या बोलते आप लोग? रहता नहीं रहता है, रहता नहीं है। मैं देखा कुरान में हल है, एनआरसी का हल कुरान में है। क्या करेंगे तो हम इस बला से बच सकते? कुरान में वाज़ेह तो बला बचा है एनआरसी के ताल्लुक से, पर हम पढ़ रहे नहीं, समझ रहे नहीं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कुरान को समझने की तौफीक हमको अता फरमाए, अल्लाह हमको हिदायत दे, अल्लाह हमको दुनिया के सारे तकलीफों से हमको अल्लाह बचाए। और हमारे जो भाई है, कौन हमारे भाई? हिंदुस्तान के हिंदू भाई, हम नूह अलैहिस्सलाम के औलाद है ना, ये लोग खूनी रिश्ता है ना, सारे आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है ना, सारे एक माँ बाप के औलाद है, सारों को ऊपर वाला पैदा करा, सारे लोग एक इंसान के। अगर मेरे को खून की जरूरत पड़ती है, हिंदू खून दे तो ले, तो मैं ले तो क्यों? खूनी रिश्ता है ना हमारे बीच में, खूनी रिश्ता ना। हमारे जो भाई है, हमारे भाई, हम सब मिलजुल के रहने की तौफीक हमको अता फरमाए, हक को समझने की तौफीक हम सबको अता फरमाए, सही को समझने की तौफीक हम सबको अता फरमाए, समझ कर अमल करके हम तमाम लोग आखिरत में भी हम कामयाब होने की तौफीक हमको अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। इस मस्जिद के जिम्मेदारान को मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मौका मुझे अता फरमाए, अल्लाह को बहुत बड़ा अजर देंगे भाई इंशाल्लाह। ये छोटा मौका नहीं है मेरे लिए, बहुत बड़ा मौका आप लोग दिए। हमारी जिम्मेदारी है लोगों को बात समझाना, हमारी जिम्मेदारी है लोगों को बात समझाना। अगर नहीं समझाएंगे तो अल्लाह की लानत रहेगी हमारे ऊपर। तो अल्लाह हमको माफ करे, ये जो मौका दिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।